Friends, either this is a reflection of fear or it is a clear realization of impending defeat, but it is clear that Mr. Modi in Gujarat is doing very large-scale advanced planning because he is perhaps highly concerned about the election results for the forthcoming state assembly elections at the end of the year, since he has transferred approximately 68 officers en masse. 68 is not a small number. It is not a coincidence. It cannot be justified as administrative postings only. 50 of these are IPS. It seems to be a collective methodology to try to place whom Mr. Modi thinks to be the appropriate person at the appropriate spot well in advance. Whether that fear has been heightened by the recent loss in the by-election, whether this general negativism has arisen because some of the gimmickry on the internet which he has successfully manipulated did not work this time. As you know, a very large number of over 2.6 lakh negative hits were received on the internet, which was the third highest negative set of hits. Or it is because the realization that he can only try to succeed with help from government quarters. One thing is clear, this should not and cannot be seen as an innocuous, casual, administrative set of transfers. It is very large, it is pointed, it is contextual, and it has a clear method behind the madness, a method which needs to be exposed. मित्रों, ये भय है चुनाव के परिणामों का या ये एक रणनीति है? निश्चित रूप से एडवांस प्लानिंग कई महीने पहले गुजरात में श्री मोदी ने शुरू कर दी है। 68 से ज़्यादा लोगों को स्थानांतरण करा गया है, लगभग 50 से ज़्यादा उसमें वरिष्ठ IPS अफसर हैं। इस सामूहिक रूप से इतने बड़े नंबरान के स्थानांतरण को कोई चांस की बात या कोइंसिडेंस नहीं कहा जा सकता। प्रशासनिक आधार पर इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये उन सब व्यक्तियों की उन सब जगहों से और उन सब जगहों को पोस्टिंग्स की गई हैं जिनको मोदी सरकार शायद समझती है कि कामयाब हों, उन्हें सरकारी समर्थन देने के लिए आगामी चुनाव में। इतना बड़ा स्थानांतरण की प्रक्रिया हाल में कभी नहीं हुई है, उस प्रदेश में ही नहीं और प्रदेशों में भी। क्या ये हार का पूर्वानुमान है और आभास है, या फिर भयभीत हैं, या फिर हाल में इंटरनेट में जो गिमिक्री कई बार उन्होंने प्रयत्न की है, जब नहीं चली और 2,67,000 से ज़्यादा ना वाले हिट्स इंटरनेट में आए, क्या ये उसका परिणाम है? ये सब प्रश्न मैं समझता हूँ आवाम पूछ सकती है, पूछ रही है। निश्चित रूप से इसको आकस्मिक समझना, इसको एक अलग प्रक्रिया समझना गलत है। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक प्रक्रिया है और ये दर्शाती है एक हताशा भी और इस पे एक प्रश्न चिन्ह भी लगाती है। जी बोलिए। अच्छा, आप बोलिए। Sir, Khalid Chishti has been given bail by the Supreme Court
So now Sarabjit family is saying that Pakistan should also reciprocate to the same fashion. First of all, a judicial decision cannot and should not be commented on the merits. But along with a judicial decision is a humanitarian aspect. And I think all persons would appreciate and look in a positive light at the humanitarian aspect. You cannot club and compare 2 or 3 or 4 unrelated cases. But as far as the humanitarian aspect is concerned, it remains the same, whether it is this side of the border or that side. And if your indication is towards that humanitarian aspect, I don't think anybody, a political party or a government this side or a political party or a government that side, will quibble about that sentiment. I am careful in repeating that I am not talking of the merits of a judicial decision, but certainly the spirit of the humanitarian aspect in each of these cases, and there are many, there are not only many in India, there are many in Pakistan, must be viewed from that point of view and subject to the due processes of judicial review in each country under its own law. I don't see how anybody can object to that sentiment. But I am only looking at it as a sentiment, not as any diktat or executive order or judicial direction. Yesterday, Mrs. Gandhi skipped that yesterday's lunch meeting. Do you think it was because Mrs. Gandhi thought that Manmohan Zardari meeting was a futile exercise? I am surprised at how all of you are speculating on something as innocuous as this. You are forgetting, firstly, that from the party Mr. Rahul Gandhi was there. And we don't know the reasons. I mean, there could be 101 reasons. Maybe she was unwell. I don't see any reason or right to anybody to start speculating on this thing. So I think this is best left at that. मैं हिंदी में बोल दूँ, हिंदी में तो बोल दूँ, यही मुद्दा है। मैं समझता हूँ कि ये मीडिया के अधिकार क्षेत्र में नहीं होना चाहिए कि हर ऐसी प्रक्रिया पे अटकल की जाए। 100 कारण हो सकते हैं, संभवतः कुछ तबीयत ठीक न रही हो। पार्टी की ओर से श्री राहुल गांधी वहाँ पर थे और मैं नहीं समझता कि इस संदर्भ में कोई भी अटकल, कोई भी स्पेकुलेशन की जगह हो सकती है। You haven't connected with the whole of my comment. You connected with the first part of my comment. The second part is that West Bengal could be any other reasons, right or wrong, and I am not supporting or opposing West Bengal. I am not supporting by any means nor opposing. But West Bengal doesn't have an election coming up. My point was in the context of an impending election in Gujarat. देखिए जहाँ तक आपके दूसरे प्रश्न का सवाल है, मैं समझता हूँ ये उपयुक्त विभाग, उपयुक्त मंत्रालय ही दे सकता है। हमको पहले बताया गया मंत्रालय द्वारा कि उपयुक्त आंतरिक जांच हुई थी और एक प्रत्यक्ष प्रथम दृष्टि रूप से कुछ गलत नहीं पाया गया था। उसके अलावा कागजी क्या कार्रवाई हुई, क्या कंप्लेंट आई, हम उसके अवगत नहीं हैं। निश्चित रूप से अगर 2008 के बस हुआ ऐसा कुछ तो RTI में मालूम हो सकता है, सरकार जवाब देगी, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जहाँ तक आपके पहले प्रश्न का सवाल है, मैं आपसे जानना चाहूँगा एग्जैक्टली किस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, क्या कमेंट आया बाकी पार्टी से, बिफोर आई आंसर। हाँ, नहीं, किस निर्णय के किस संदर्भ के आप पूछ रहे हैं? आई नो ओड के बारे में आप किस कमेंट या किस टिप्पणी के बारे में पूछ रहे हैं? आई नो अबाउट 2000। बीजेपी की टिप्पणी अभी आई, हाँ, उन्होंने ये कहा है कि ये जो फैसला है साबित करता है कि गुजरात में न्याय और जांच व्यवस्था किस तरह से बेहतर है, जबकि 84 के दंगों में अभी तक कोई सजा नहीं हुई। देखिए, हर बार किसी न्यायिक निर्णय पे, उसके मेरिट्स पे टिप्पणी करना, उस पर हर्ष जताना, और विशेष रूप से जहाँ ट्रायल कोर्ट की निर्णय हो,
हम सब समझते हैं और जानते हैं कि ट्रायल कोर्ट एक प्रथम रंग है, प्रथम एक दर्जा है, उसके बाद इसमें अपील्स होती हैं। तो इस निर्णय के ऊपर कोई ऐसी हर्ष जताना या ऐसी टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ों से जोड़ना वो भी गलत है। क्या उनको मालूम है कि कितने राजनीतिक करियर्स स्पष्ट रूप से इस्तीफे के द्वारा, हटाए जाने के द्वारा 1984 के विषय में एक्शन लिया गया था? क्या उनको मालूम है कि कितने प्रोसिक्यूशंस चल रहे हैं? जैसे हम बोल रहे हैं तब भी ट्रायल्स चल रही हैं। तो ये तो एक देश को बरगलाने की प्रक्रिया होगी। हाँ, कौन? हाँ, अगर गांधी के खून से सनी मिट्टी की नीलामी होती है तो वो अपना जो पद्मश्री है वो लौटा देंगे। उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड लिखी है कि इसको रोकना चाहिए। देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल केस के फैक्ट्स नहीं जानता। निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं कि भारत सरकार ने पहले भी और भविष्य में भी कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं होने देगी जिससे महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति की स्मृति को भी ठेस पहुँचे। ये बार बार सिद्ध हो गया है। गांधी कागज़ों से लेकर, गांधी के विषय में पेन से लेकर, गांधी के विषय में इन सब लेकर बार बार हस्तक्षेप हुआ है। तो आप आश्वस्त रहें कि जहाँ जहाँ अधिकार क्षेत्र है वहाँ पर सरकार कभी भी इस प्रकार की ठेस नहीं पहुँचने देती है। सिर्फ हमारे देश के वो एक महान आत्मा नहीं हैं, लेकिन विश्व भर के हैं। पंचायत इलेक्शन stand on a different footing. We are talking of something totally different in the Gujarat context. Totally and radically different. एक मिनट। Muslim League is for a fifth minister. There is no question of stand of the Congress High Command. These are not things which you discuss in passing or in the street or in the media. There is a certain basis for partnership. There is a certain formula in the coalition. There is a certain system. If there is any such demand and if there is the slightest validity to such a demand, it will be looked at in the appropriate quarters. There is no question of having a reaction like this to it. Maybe, it hardly matters. It has to be done as per a system. These are formally laid down at the beginning when the government is formed. Ji. Sir, once again, Somali pirates have hijacked a ship off the coast of Oman and 70 million crew members are on that ship. See, this is an extremely distressing phenomenon. Extremely distressing and worrying, because this is something which is purely in the private sector, and yet it can happen to anybody, anywhere in the high seas. I think India has stood firm and will again take whatever action it can, both at the diplomatic level and otherwise. But I see no overall solution unless and until the entire set of countries, and this is a general view, obviously it is not a government view or an immediate view, unless and until a large group of countries, especially bordering the rim and the horn of Africa, Middle East and that entire area, get together collectively, because it has now become a scourge. It is selective, it is random, it is episodic. You don't know which ship will be attacked when, and obviously these are private commercial merchant ships, so governments can only react ex post facto. So I agree with you, it's extremely serious, but it requires, I think, a global effort by way of a regional treaty, at least of that region, to take the strongest possible action which is exemplary in nature and teaches a lesson so that future incidents do not recur. ये एक अत्यंत भर्त्सना के योग्य, एक दुर्भाग्य की बात है। ये बारंबार हो रहा है। ये रैंडम रूप से किसी भी नाव, शिप के विषय में हो सकता है। वो वाणिज्य के लिए प्राइवेट सेक्टर में चलती हैं। अगर सरकार से कोई संबंध न भी हो तो भी इसमें कोई भी देश की शिप्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने जब ऐसा कोई मौका आया है तो डिप्लोमेटिक स्तर पे भी और ठोस कदमों के आधार पे भी पूरे कदम उठाए हैं, लेकिन अंततोगत्वा इतनी भयानक चीज़, इतनी भ्रष्टता के योग्य चीज़ का हल सिर्फ एक सामूहिक रूप से एक सहमति बनाकर अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी के स्तर पे हो सकता है।
उन सब देशों द्वारा कम से कम जो इस पूरे इलाकों में, जिसको कि रिम एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, जो मिडल ईस्ट के देश हैं और दक्षिण एशिया के देश हैं, वो लोग सब मिलकर एक सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी के स्तर पे एक ऐसी ठोस चीज़ बनाएं जिससे कि इन सभी देशों की जो नौसेना हैं वो एकजुट होकर ऐसे पायरेट्स को एक मुंहतोड़ जवाब दें। मैंने तो कहा, मैंने कहा ये सेंटिमेंट बहुत उत्तम स्तर का ह्यूमैनिटेरियन सेंटिमेंट है, इससे ऊंचा क्या हो सकता है। और मैं नहीं समझता कि किसी भी देश में चाहे दुराव हो, चाहे एक कभी कभी विषैला वातावरण हो, तो न तो उस देश के नागरिक और न उस देश की न्यायपालिका कभी भी उस सेंटिमेंट को भूलती है या भूल सकती है। ये भारत में भी सही है, ये पाकिस्तान में भी सही होगा। और पहले ऐसे उदाहरण हुए हैं दोनों तरफ बॉर्डर के, जहां आपको ऐसे परिणाम मिले हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ लगती है कि ऐसा कोई आरोप जिस दिन आता है उस दिन उसका उत्तर देना आवश्यक नहीं है। इसके हज़ार उत्तर हो सकते हैं। कल माननीय रक्षा मंत्री आपको बता सकते हैं कि चिट्ठी आई नहीं आई तो किस प्रकार से जवाब दिया गया, किस तारीख को जवाब दिया गया। ये सब आपके पास तथ्य नहीं है। आप 2-4 दिन रुकिए। मुझे कोई संदेह नहीं है कि जब ये आरोप लगाया गया है तो विभाग, मंत्रालय और मंत्री इसका जवाब देंगे। इसमें कोई इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आज हमारे यहाँ RTI है, सब आपको स्पष्ट आ जाएगा। लेकिन आज हमारा कुछ कहना इस पर कहाँ बनता है? हमारे पास कोई इसके ऊपर आधार नहीं है कहने का। In another interview, somebody hinted, the MOS said that there might have been a panic reaction. That was a general comment in an interview, and I don't see any reason to comment on it. If you want any specifics, you have to ask the person who made the comment, but he was giving a general view in a television interview. देखिए, आप जानते हैं कि इस वक्त एक प्रस्ताव की शुरुआत है। इस वक्त इस पर टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि अंततोगत्वा ऐसे प्रस्ताव कार्यान्वित तभी हो सकते हैं जब केंद्र की अनुमति हो। तो जब कानून के अनुसार एक प्रक्रिया निर्धारित है और वो प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है, तो उस पर टिप्पणी करने का क्या फ़ायदा? एक प्रस्ताव है, उस पर जो होगा सो होगा। मुंबई में सर्वे कराया सांसदों के बारे में, लोगों से पूछा गया कि सांसद कैसे बर्ताव करें। क्या आपको लगता है बार-बार संसद को चुनौती दे रहे हो? अब जैसा मैंने कहा, ये लोकतंत्र है, गणतंत्र है, लेकिन इतनी बार अगर वो जनता से प्रश्न पूछते हैं तो खुद जनता से जाके अपने बारे में प्रश्न पूछ लें, चुनाव लड़ लें, खड़े हो जाएं, म्यूनिसिपल इलेक्शन में खड़े हो जाएं। बाकी उनका हक है, वो प्रश्न पूछते जा सकते हैं। अब इसमें सर्वे साइज़ क्या था, उस सर्वे की एक्यूरेसी क्या थी, ये सब आप प्रश्न पूछिए। ओके, हमने अपनी बात बड़ी स्पष्ट कह दी, उन्होंने हमारी बात सुन ली, उनका स्टैंड भी उनकी तरफ बरकरार है। मैं समझता हूँ कि कई जगह हमको ये सहमति होनी पड़ती है कि हम असहमत रहेंगे।